Good evening, नमस्कार, मेरा नाम सुजय गुप्ता है. Thank you for joining in for another exciting episode of Carto.in presents Saturday Stardom Live. हमारी आज की गेस्ट की मदर से आप कुछ समय पहले Saturday Stardom Live पे मिल चुके हैं. हमारी आज की गेस्ट एक ऐसी एक्टर हैं जो एक होस्ट भी हैं और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं. So ladies and gentlemen, please join me in welcoming the very beautiful and humorous Pooja Kanwal. Let's connect with her. Pooja Kanwal, namaskar. Thank you for joining in on our episode today. And बहुत सारे लोग बड़ी देर से वेट कर रहे हैं. They are looking forward to meet you and know about you. Thank you for joining in. How are you? Thank you so much, Sujay, for having me. I've been very excited about it. खुद बहुत ही एक किस्म से मैं कह सकती हूँ नर्वस भी हूँ मैं इसको लेकर. Not because I'm in front of the camera, थोड़ी सी आदत की है, but because आज मेरे लिए बहुत बड़ा रोल रिवर्सल है. मैं आमतौर पे आपकी कुर्सी में रहती हूँ और आज मुझे दूसरी तरफ रहना है, तो मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती हूँ यहाँ कि बीच में सवाल मैं ना पूछने लग जाऊं, आपकी लाइनें मैं ना बोलने लग जाऊं. So I guess this is like a host to host sort of feeling. But I must tell you, मैंने आपके interviews देखी है मम्मा के साथ भी with my mom Anita Kanwal, and I have to tell you, you are inspiring me. I love the work you're doing. जितना खूबसूरत आपका स्टूडियो है and जो आप होमवर्क करके आते हैं, I should learn a few things definitely from you about एक आर्टिस्ट को जब वो आपसे बात करने आते हैं, आप उन्हें ऑलरेडी ये फीलिंग दे देते हैं कि आप उनको जानते हैं, तो इंस्टेंटली वो इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं. एंड आई थिंक एज अ होस्ट दैट इज अ वंडरफुल क्वालिटी. सो एवरीवन हियर, सुजय हमेशा आर्टिस्ट की तारीफ करते हैं, लेकिन आज हम शुरू करेंगे सुजय की तारीफ करने से. यू आर डूइंग अ फैबुलस जॉब. Okay, so coming to this, you are a host, you are a successful actor, and you are also a voice-over artist. You have so many different, multi-talented personality you are. How has this journey been of yours? My journey has been very interesting because अब दिसंबर में 5th दिसंबर मुझे 18 साल पूरे हो जाएंगे in performing. Just if I summarize all of these as a performer, 18 साल professionally as a performer, and if I count those ads that I did for pocket money along with college, या जो मैंने भाग के कोई टेलीफिल्म की, literally not भाग के because I was always allowed, but classes bunk करके या वो सब करके, अगर मैं वो गिनूं तो मुझे हो जाएंगे पूरे 20 साल. I know मैं 20 साल, yeah, I'm very old, but never mind that. But the point is कि एक अब आप उसे बोले that पहले मेरी शुरुआत हुई जब मैं बहुत सीरियस प्रोफेशनल डांस ट्रेनिंग में थी. तो या तो एक डांसर्स थे, एक्टर्स थे, होस्ट थे, वॉइस आर्टिस्ट, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, and which has been true to my thought the minute I decided to do what I set out to do 20 years ago. और वो एक चीज कॉमन ये है कि मैं अपने आप को ना एक्टर मानती हूँ, ना डांसर मानती हूँ, ना होस्ट, ना वॉइस आर्टिस्ट. मैं सिर्फ एक चीज मानती हूँ, and that is an entertainer. So I believe, जैसे अगर आप भी मुझे आज इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं अपने आप को यही बोल रही हूँ कि इस इंटरव्यू के जरिए कोई ना कोई कहीं ना कहीं एंटरटेन होना, किसी ना किसी को एंटरटेन होना चाहिए. अगर उन्होंने वो आधा घंटा निकाला है हमें स्क्रीन पे देखने के लिए, so they should get entertained. So the minute I have thought of myself as an entertainer, I have been able to disconnect from wanting to be a heroine or wanting to, be projected in a certain way. If I'm doing a character, I should be able to entertain through the story that character is a part of. If I'm hosting, as a host, मैंने कई अलग areas में hosting किया है, as an entertainment show on news channels, as a serious, even business shows, as everything. But at that point of time, when that person is watching you, be it even on a live, मैंने wedding संगीत भी host किए, उन्हें उस time के लिए जब आप उनके सामने हैं, they should forget everything around and they should just surrender to that content that you're presenting in front of them. So I have applied that to all the mediums, as a dancer, as a voice artist, and I think that's the only thing that's kept me strong and grounded through all of that.
वाओ, फैंटास्टिक। तो ये मतलब घर से भी बहुत सारी इंस्पिरेशन रहती होगी। अनीता मैम इज देयर एंड वहाँ पे भी काफी आइडिया शेयरिंग होता रहता होगा, एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव लर्न सो मेनी थिंग्स बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स, उनका 20 इयर्स तो इट्स लाइक एक क्वार्टर कि भाई ये तो छोटा टाइम है। तो कुछ चीजें क्योंकि अब हमारे जीवन में मम्मा मेरे और फैमिली बढ़ती जा रही है, और अब हमारे जीवन में कुछ नॉन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग भी हैं, लाइक माय हस्बैंड और फॉर दैट मैटर माय डॉटर हु इज स्टिल जस्ट 8 years old। तो जब हम उनके नजरिए से देखते हैं तब हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारी कॉन्वर्सेशंस घूम फिर के हमेशा एक अलग किस्म की होती है। अब ये बात हमें पहले नहीं पता थी क्योंकि घर में थी मम्मा, मैं और मेरी दीदी जो एंटरटेनर नहीं है, परफॉर्मर नहीं है, बट शी इज आल्सो स्टाइलिस्ट। तो घूम फिर के वो भी कभी कभी अपना वर्क स्ट्रेस के अरे उस कॉस्ट्यूम की कंटिन्यूटी में तो पिंक क्लिप था और ड्रेस दादा ने ब्लू क्लिप दे दिया। मतलब these are very lunch time conversations in our house, you know। तो अब हम ज्यादा दूर ना जाए। आज मैं अपने मायके आई हुई हूँ आफ्टर अ गुड 8-10 days and I've come to mom's and I was sitting with her over lunch। एग्जैक्टली 2 घंटे पहले हमारी ये बात हुई है कि मैं एक एड शूट करने वाली हूँ नेक्स्ट वीक, and I was sharing with her how when we had a creative, ऐसे ही Zoom पे हमारी मुलाकात हुई टीम के साथ, and though I am an actor, I am for that particular ad the model and I will go and I will do as I'm told, but fortunately for me I've also in a lot of places have become a part of the creating process which happened by default। मुझे नहीं you know पहले ऐसे लगता था कि मैं बैठ के कंटेंट क्रिएशन पे बैठूंगी, मैं सोचूंगी कि ये कंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन इसमें 4 चेंजेस है और शूट हमें एक दिन में करना है तो हमें लॉजिस्टिक्स देखने। बट होस्टिंग कर करके कहीं ना कहीं मेरा थॉट प्रोसेस वैसा हो गया। तो आई वाज जस्ट शेयरिंग विद मॉम कि कैसे उस प्रोसेस में मैंने कुछ सजेशंस दिए और क्या उनपे यू नो रिस्पॉन्स मिला, कुछ अच्छा कुछ गलत, कि मैंने ये गलत बोला व्हाटएवर, एंड देन उन्होंने अपना मुझे फीडबैक दिया। सो जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल ऑफ ये मटर पनीर खाते वक्त हमारे घर में ऐसी बातें होती हैं, यू नो। हाँ, जो हमें इट इज नॉट कि मम्मा आई हैव टू मीट यू और आई हैव टू आस्क यू कि मैं ऐसे क्या करूं या मैं इधर बैठी हुई हूँ अब मैं क्या बोलूं। इट इज जस्ट दैट्स व्हाई इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ माय प्रोसेस फ्रॉम व्हेन आई वाज, आई थिंक मैं 3 या 4 साल की थी जब मैंने दावा को मतलब ऐलान कर दिया था कि मैं एक्टर बनने वाली हूँ। तो My whole family knew it। तो कहीं ना कहीं एक इंटेंशनल तरीके से, जैसे अगर कोई और यू नो हिंदी में कोई गलती करे या किसी की आवाज अच्छी नहीं लगे तो आप अपने फैमिली मेंबर को बोलोगे नहीं, लेकिन क्योंकि ये लड़की इतनी क्लियर है कि इसे एक्टिंग करनी है तो इसे हम अभी करेक्ट कर दें। So little things which were always parcel of the whole process of me growing up, and that learning which I still think is हमारी फैमिली का एक हिस्सा। हम अभी भी बैठ के खासकर जब मम्मा मैम और मैं मिलते हैं, मम्मा दीदी मैं मिलते हैं, तो बातें घूम फिर के ऐसी ही होती हैं। हाँ, जब ग्रुप्स बड़ी हो जाती हैं, कुछ फ्रेंड्स जो इंडस्ट्री से बाहर के हैं या फैमिली मेंबर्स, तब हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं कि ऐसा ना हो कि हम उन्हें बोर कर दें अपनी बातों से, बट बिकॉज यही हमारी यू नो भूमि है कि हम अपने आप को डिटैच नहीं कर पाते। वैसे इसके इतनी पॉपुलैरिटी के बाद और इतना आपने you've done so much of work, you started a jewelry brand, Mehtani Jewelers. Yes. Yeah. So you know this year to हाँ जी बिल्कुल ये जो year 2020 है, it's been a lot about change. I don't know how much everybody believes in energy cycles and changes and all, लेकिन मैं ज्यादा डीप उसमें ना जाऊं तो भी एक चीज है जो साल 2020 के बारे में है, that it has been a year of major change, you know. For some for the better, for some it's been for the worst, you know। So there have been all sorts of things, and मेरे साथ कुछ ऐसा टाइमिंग हुआ कि टच वुड पिछले 5 सालों से मुझे नहीं पता था दिन क्या है, रात क्या है, संडे क्या है, मंडे क्या है। मैं सुबह उठती थी तो मुझे 10 सेकंड लगते थे देखने के लिए कि मैं आज कहाँ हूँ, कौन से शहर में। टच वुड नॉक ऑन वुड। So उस टाइम कुछ होश नहीं था because calendar was in a very nice and positive and in my own small way nicely decently packed and occupied, you know। तो उस समय बिल्कुल वक्त नहीं था सोचने का कुछ और, क्योंकि शायद अब इस अगर मैं 18 साल के ग्राफ की बात करूं तो हमने बहुत फेजेस ये भी देखे हैं जब 1-2 साल अच्छा काम नहीं मिल रहा होता है आर्टिस्ट को जैसा काम चाहिए, थिंग्स डोंट मटीरियलाइज, और वही आर्टिस्ट वही परफॉर्मर, then you've seen the 2 years of not knowing your next holiday, and I think that happens with almost every performer.
So yes, for me, the last couple of years, 4-5 years, were not about thinking. They were not about planning. They were just about executing and doing the work that was in my lap. Now, as we all know, the lockdown happened. I was doing a lot of events, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल थे, और कुछ ऐसे shows भी मैं TV पे कर रही थी जो because of the scenario वो अभी के लिए तो नहीं जा रहे हैं air पे. And I don't know. So this was a great time for me to sort of sit and think. And it just so happened that my husband, who is a 4th generation jeweler, was also planning to start his own. He was with a joint family jewelry structure, and he's been doing this. Like I said, 4th generation. तो उनकी रगों में, उनकी family में jewelry is, like I said, for us जैसे performing है. So it is the only conversation. It is everything. तो इतने सालों से मैं देख रही थी और मैं अपना काम कर रही थी, वो अपना कर रही थी, and this was a great time because he was going solo with his own jewelry enterprise, and I had time now, and you know, मेरी बेटी भी अब एक किस्म से काफी बड़ी और independent हो गई है, and जो मेरे performance के projects हैं वो भी autopilot mode पे हैं, in the sense of एक अच्छी security over the years of work है कुछ लोगों के साथ. So it was, the timing fell so beautifully to play. And I said that it would be a great way to sort of start something together. अब डर तो बहुत लगता है क्योंकि मियाँ बीवी साथ में काम करे तो लड़ाइयाँ भी बहुत हो सकती है. So मेरा सबसे पहले वो सवाल था. I said that I do have certain ideas that I can bring to the table, but फिर बॉस कौन होगा? So he said, don't worry. वहाँ भी तुम ही बॉस हो, like you are at home. So, but the point is that, yeah. So what a diplomatic answer. How safe he is. भाई तुम बॉस रहो, लड़ाई मत करो. बिल्कुल. He is like that, so calm. जितनी hyper मैं हूँ ना, he is that calm. So he said, you want to do, you do. No worries, then I'm there. So simultaneously this happened, and you know, it was an answer in itself. That I was getting some time off from my hosting work and all, which is still touchwood. बहुत सारे virtual events हो रहे हैं. मेरे कुछ voice project take off होने वाले हैं जो मैं बहुत जल्द आपके साथ share करूँगी. So वो सब तो है ही, but I was still left with time. तो मुझे 100 चीजें करनी होती है ना एक टाइम पे. 20 करूँगी तो बोर हो जाऊँगी, तो मुझे 80 तो करनी होती है और. So it was a lovely, gradual, maybe natural shift into you know, starting our own enterprise, and we've called it Mehtani Jewelers, which is of course family name. My full name is also Pooja Kamal Mehtani, and there is already a sort of an association and connection with that name because वो नाम रहा है 4 generations से jewelry industry में, and touch wood, it's no complaints, no looking back. It's been very exciting. Fine, very good. और वैसे भी अनीता मैम का भी एक साड़ी ब्रांड है जो हम सबको बहुत अच्छे से पता है. आई थिंक ये दोनों बिजनेसेस वेंचर्स जो है ना, ये एक साथ चलेंगे पैरेलली. आई एम श्योर यू मस्ट हैव थॉट अबाउट इट ऑलरेडी. You know, लोग मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी के लेके और अपनी पति की ज्वेलरी मॉडल करने के बाद कैसे टाइम मिलता है तुम्हें और कुछ भी करने का. So yes, but definitely they complement each other. And हमने इतना कुछ शेयर किया even as actors together. And ये coincidence है because mom has been in the designing you know, garments and Indian wear for over 5-6 years now. और मेरे लिए ये नया है, तो ये भी एक किस्म से coincidence, you know, jewelry मेरे लिए नहीं है, of course not for my husband. तो ये भी एक किस्म से coincidence है कि दोनों यहाँ पे भी एक किस्म से you know, कुछ मिलाव है इस फील्ड ऑफ वर्क में भी. एंड लकीली फॉर बोथ ऑफ अस हम अभी भी अपना यू नो परफॉर्मेंस करते रहते हैं. बट हाँ, जब वेडिंग सीजन पिकअप होता है, so there is a lot of amalgamation that you can do, a lot of you know, looks that you can coordinate and put together. Yes. हम रियल ज्वेलरी करते हैं, फाइन ज्वेलरी करते हैं, हम पोल्की भी करते हैं. So there is a lot of interesting scope for all these industries. ये साल बस थोड़ा बेहतर हो जाए, चीजें थोड़ी और वो वापस वो 2000 लोगों के फंक्शंस शुरू हो जाए. And as a host, as a jeweler, I'm really hoping after that there's going to be no looking back again. Wow, fantastic. I hope you have all the success. आने ही वाला है, सर पे है शादियों का सीजन, तो I think सारा gear up हो चुका होगा, खूब सारा. I'm sure you're doing a lot of posts on your social media as well, and whichever marketing platforms you're using. Apart from this, you worked in a lot of supporting roles in real life. Who has been your biggest support during your whole journey in your real life? Well, definitely my mom.
the biggest support, I mean, the kind of sacrifices that Mama has done for me to be who I am, to reach where I am. She's seen me through the toughest phases. She's been smiling and clapping for me through all my high points. When she hasn't been able to probably be a part of the project that I was doing, at least she's made her self present by babysitting for my kids, so that she tells me, "Beta, tu बेफिक्र रह, तू perform कर, मैं अविका के साथ हूँ." So through all of that, through my first flop, through my outdoor schedules when I would miss the घर की खिचड़ी and I wasn't getting it. So right from the small moment to me coming and saying, "Mama, बहुत मुश्किल सीन है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं मना कर रही हूँ." And she's like, "You're my daughter. You will do it." Yes. So that voice behind me it's still her. Of course, my husband has been supporting me immensely. It's been 14 years now. We're together. Next week is our 11th anniversary. So he's also seen a lot of, we've all gone through our ups and downs together. So, and my daughter, the three core people in my life, my daughter. So when she was about 6.5 or something, she came up to me and I said, काम में किसी के साथ लड़ाई हुई है, don't talk to me, मैं बहुत snappy mood में हूँ. And she understands because she's seen me under pressure. She's seen me getting those jitters 10 minutes before a show, and she's gone and got me a glass of water. So she came and said, "What happened, Mama?" I said, "बेटा लड़ाई हुई है, होती है कभी-कभी, it's okay, but just let me be today, irritate मत करना." So I said, "मम्मा मैं छोड़ दूंगी, मैं नहीं काम करूंगी इन लोगों के साथ." तो she said, "मम्मा ऐसे मत बोलो, जब नया प्रोजेक्ट मिलेगा तब सोचना, लेकिन तब तक हाथ में काम रखो." So she was 6.5 and I was like, "Is she my grandmother? ये क्या हो रहा है इधर?" बेसिकली आपका और अनीता मैम का ये मदर डॉटर डुओ था. अब ये नेक्स्ट जनरेशन अविका एंड पूजा का मदर डॉटर डुओ आगे चलेगा, है ना? I'm sure. बिल्कुल. इनफैक्ट होपफुली हम कुछ प्लान चल रहा है दैट कुछ मैं और अविका भी शायद साथ में शूट करें एंड करते रहते हैं. बहुत कीड़े हैं दिमाग में अभी, बहुत. आपने अभी पीछे एक इंटरव्यू में बोला था, I would not want my daughter to pursue acting. ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो गया? आप ये सवाल जो आप आज पूछ रहे हो ना, मेरे हस्बैंड ने मुझे कल ही ये सवाल पूछा. बिकॉज़ आई वाज प्लानिंग. बहुत अच्छा सवाल है और इसका मेरे पास एक बहुत अच्छा जवाब भी है. बिकॉज क्या हुआ, my husband, I said कि मैं ये कर रही हूँ और फिर मैं अविका के साथ ये शूट करूंगी and all of that, and he said 1 minute, don't you always say that मैं नहीं चाहती हूँ कि वो बड़े होके एक्टर बने. So मैं आपको भी उसी तरीके से समझाऊंगी. हुआ क्या था, बचपन से मम्मा, दीदी और मुझे अपने साथ शूट्स पे ले जाती थी. अपनी दुनिया हमारे से कभी नहीं छुपाती थी. अगर कभी कोई दिल्ली में कोई छोटी एड बन रही थी, प्रोड्यूसर बोलते थे, "अनीता जी अपनी बेटियों को ले आओ", तो वो भी हम फ्री में आ जाते थे. तो हम ऐसे पले बड़े हैं. हाँ, उसमें क्या हुआ कि मेरी दीदी ने देखा कि ये लाइफ कैसी है, एक्टिंग करना कैसा है, और उन्होंने भी बहुत छोटी उम्र में बोल दिया था कि मैं जो भी करूंगी, मैं शायद इस इंडस्ट्री में काम करूंगी, मैं एक्टिंग कभी नहीं. और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं दीदी से 7 साल छोटी हूँ, लेकिन मैंने भी तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं जो भी करूंगी मैं परफॉर्म जरूर करूंगी. तो व्हाट माय पॉइंट इज दैट अब ये दुनिया मेरे जीवन का ये हिस्सा है, मेरी ज्वेलरी और मेरे परफॉर्म करना. मैं अपनी एक बेटी जो मेरी है, एक बच्चा है, मैं उससे कभी अपनी दुनिया छुपाऊंगी? मैं चाहूंगी कि वो देखे, मैं चाहूंगी कि वो मुझे मेरे एक फ्लॉप पे मेरा दिल टूटे, वो मुझे रोते हुए मेरा हाथ पकड़े मेरे साथ, वो मेरे शो लॉन्च होने के पहले मेरे जो पसीने छूट रहे हैं वो देखे, वो मेरे हील्स या शू बाइट्स में जो मैं 8 घंटे नाची हूँ वो मेरे पाँव के कट्स देखे. You know what I'm trying to say? वो पूरा माहौल देखे और फिर वो एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाए, जो कहीं ना कहीं मैं होप करती हूँ कि वो ये हो कि मुझे ये नहीं करना. लेकिन क्योंकि उसने हमेशा पैदा होते से ही ये देखा है, अगर वो इसे एक्सपीरियंस नहीं करेगी, अगर मैं उससे ये छुपा के रखूंगी, तो कहीं ना कहीं उसे लगेगा that I was never allowed to do. मम्मा ने मुझे कभी नहीं ट्राई. मैं चाहती हूँ कि वो ट्राई करे और खुद उसे एहसास हो, जो हम बोलते हैं इस इंडस्ट्री में जो इतने सालों से हैं कैमरा के सामने, that all that glitters isn't gold. वो पीछे से कितना मुश्किल है, क्या क्या होता है, हमने देखा है. So I want her to be very, very aware. If after being that aware, she decides to do it, yes, I will support her. And I will hope that her heart isn't broken, she gets the work that, is due to her. But having said that, I would somewhere deep down really, really hope that she doesn't. Chalo, that I think time will decide. And time will decide. Let her decide. Tab tak it's a free world and I will allow her to, explore everything in life. Yeah, I agree. आपने एक ये जो you've been the host of सास बहू और बेटियां,
जिसमें इतने सारे डेली सोप्स की एक्साइटिंग न्यूज शेयर होती थी एंड आप खुद करते हो, इन सब में वैसे पर्सनल फेवरेट कौन सा है आपका? एंड अगर उसमें कोई कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिले तो कौन सा करेंगे? पर्सनल फेवरेट सीरियल? हाँ, मैं कोई शो इन पर्टिकुलर शायद ना बोल पाऊं, लेकिन मैं हमेशा एज एन एक्टर कॉमेडी की तरफ अपने आप को बहुत ड्रॉन फील करती हूँ. सो आई लव भाभी जी घर पर हैं. आई लव द अंडरटोन एंड आई लव द वेरी नॉट इन योर फेस slapstick comedy. I love that little classy subtle undertone. और not just that, अभी शायद एकदम से मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन definitely comedy ना भी हो तो slice of life, but feel good shows, and thankfully for me मैं एक ऐसे शो का हिस्सा रह चुकी हूँ, ससुराल गेंदा फूल. yes. But what I enjoyed, since आपने सास बहू और बेटियां की बात की, really took me down memory lane. I think 5 सालों में लगभग 1500 अगर मैंने एपिसोड पुश किए होंगे. इट वाज अ डेली शो. पर मैं प्राउडली बोल सकती हूँ दैट एक्सेप्ट दुल्हन का कैरेक्टर जो मुझे, या किसी त्योहार में जो त्योहार होता था हमें उस त्योहार की थीम देखनी होती थी, बट बिसाइड्स दैट आई डोंट थिंक मैंने कोई कैरेक्टर रिपीट किया, और सब में एक कॉमेडी ट्विस्ट में आके एंकर किया एपिसोड को. तो चाहे मैं दूध वाला या दूध वाली, मतलब आई हैव बीन बिकम एवरीथिंग. अगर मुझे कोई कैरेक्टर है जो तुमने अभी तक नहीं किया, मैंने सास बहू और बेटियां में ऑलरेडी कर लिया. चाहे वो चंद घंटों के लिए हो और मुझे उसमें परफॉर्म करने के लिए कई साल उस रूप में ना रहना हो, बट थैंकफुली फॉर मी सास बहू और बेटियां ने मुझे इतना कुछ 5 सालों में एज अ परफॉर्मर करने को दिया. मैं मेड बन चुकी हूँ उसमें, मैं बड़े बड़े हीरोज की एक्टिंग कर चुकी हूँ. हीरोइंस तो ऑफ कोर्स जब बाजीराव मस्तानी रिलीज हुई तो वो गेटअप लिया हमने खुद से. वो गेटअप्स कितने अरेंज किए, उनपे कितना काम किया, उनके गानों को परफॉर्म किया, मैंने कवालियां की, मैंने सरदार जी बनी हूँ, मैं गोवन बनी हूँ, मेरी कैथलिक वेडिंग हुई है, मेरी बंगाली वेडिंग हुई है, मेरी मुस्लिम वेडिंग हुई है, मैं हर किस्म की दुल्हन बनी. तो थैंकफुली फॉर मी, मैं उस एक शो ने मुझे एक जन्म भर का एक्सपीरियंस एज एन एक्टर दिया है. एंड नॉट जस्ट एम आई वेरी प्राउड ऑफ इट, बट इट्स ऑल्सो मेड सम ब्यूटिफुल मेमोरीज. तो और मैंने सबको कॉमेडी अंदाज में किया है, क्योंकि वो मेरी थोड़ी है कि मुझे सब चीज फनी तरीके में करना. और जब आप एंकर कर रहे हो, आप उसको as you know, you can take it on whatever note you want, right? So मैंने मजे ले लेके touch wood. Fantastic. But इसके अलावा don't you think आजकल ये OTT प्लेटफॉर्म्स भी बड़ा एक डिफरेंट और नए कॉन्सेप्ट्स ला रहे हैं और पॉपुलैरिटी हो रही है. ऑफ कोर्स you think that these major shows will be replaced by what content is being floated on the OTT platform, or it will try to replace the television? Do you think? I think हो ही रहा है. I think काफी हद तक हम as audience भी बदल रहे हैं. So that हम अपने आप से अपने ही घरों से देखें तो it's very very clear. सिनेमाज जाने का तरीका ढंग बदल रहा है, मूवीज देखने का हर चीज बदल रही है, GEC चैनल देखने का तरीका बदल रहा है. बट thankfully for us, all our content makers are also very, of course, adept with the whole situation. They're very aware. तो वो भी अपने आप को उस तरीके से मोल्ड कर पा रहे हैं. वो भी एप्स पे आ रहे हैं, अपने कंटेंट को ट्वीक कर पा रहे हैं, जो उन्हें पता है कि दोनों तरह चल सके. And our whole viewing habits have changed. And I think that for actors it's really really good, क्योंकि हम पहले एक अलग किस्म की ऑडियंस को एंटरटेन कर रहे थे. जब हम सिर्फ जब सिर्फ सीरियल्स चल रहे थे एंड OTT प्लेटफॉर्म बिल्कुल नहीं थे, तो वो अलग किस्म की ऑडियंस थी. लेकिन इसके आने से मैं नहीं कहूंगी कि वो ऑडियंस बदल गई है, लेकिन वो ऑडियंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है. तो अब हम हर किस्म का काम दे सकते हैं. एंड शॉर्ट फिल्म्स बहुत बन रही हैं. I've also done 2 short films. One is soon I'll be able to tell you about it. So for actors कहीं कहीं ये भी होता है कि मुझे एक डेली सोप में एक कैरेक्टर लेके 2-3 साल नहीं करना. तो बहुत सारे एक्टर्स को कभी कभी काम इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि वो बनना नहीं चाहते. लेकिन अब एज एक्टर्स आपको एक्सप्लोर करने के कितने मौके मिल रहे हैं, सीजन्स आने लग गए हैं चीजों के. सो it's a very interesting time for actors actually, for performers. और दुनिया बहुत ज्यादा खुल गई है. अनिता मैम ने भी सेम चीज कही थी कि मतलब a lot of work is now being floated out in the industry, and different type of characters, different type of people being portrayed in true stories as well. अभी आपने लेटेस्ट OTT पे कोई सीरीज देखी है? Which one did you like?
मैंने अभी देखी है सूटेबल बॉय, मैंने देखी है बंदिश बैंडिट्स, एंड ऑफ कोर्स आई नो मम्मा आल्सो सेड दिस, बट वी बोथ, हमने साथ मिलके नहीं, बट वी वॉच्ड एमिली इन पेरिस अपने अपने घरों में, तो हमारी कॉन्वर्सेशन होती थी, अच्छा आप कौन से एपिसोड पे पहुंचे शीत से, नहीं नहीं मैं 3 पे पहुंची हूँ, मत बताना आगे क्या होता है। तो वो सब होता था, बट आई हैव लव्ड, आई एम अ big music lover, so Bandish Bandits, so Touchwood, I think was just it was amazing. Amazing. I loved a Suitable Boy. मैंने कल Suitable Boy खत्म की है, तो I loved the way it just took me into an era which there was always a lot of curiosity for, but the way it made me feel कि मैं उस जमाने की भी लाइफ जी चुकी हूँ, by just because I binge watched it, so I think it was lovely. एक्शन सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर? मैं एक्शन नहीं देखती हूँ, मैं जब एक्शन के लिए डब करती हूँ मैं तभी देखती हूँ। क्योंकि मैंने कहा मैं बोलूँ कि मैं एक्शन सीरीज नहीं देखती हूँ तो नीचे कमेंट्स आ जाएंगी, लेकिन आप तो कैप्टन मार्वल है, तो मैं वो भी क्लियर कर रही हूँ। डबिंग करती हूँ मैं तो सब देखती हूँ, अपने सीन नहीं होते हैं दूसरों के सीन भी देखती हूँ, लेकिन पर्सनली मैं एक्शन नहीं देखती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत एक्शन है। सही है बहुत। On this note, I'm going to start off a segment that we have. It's called the one word, one line answer. And I'm going to ask you a certain set of questions जिसमें आप एक word या एक line में answer कर सकते हैं. Are you ready? I'm scared. Okay, let's start. Start. What makes you happy? When there's a lot of laughter around me, I feel happy, which is why I love to make people laugh. Okay. What do you do in your villa time? Exercise, dance, and cuddle a lot with my daughter. Okay. 3 words to define yourself. Energetic, bubbly, simple. Okay. Favorite cuisine? Indian, Gujarati food. कुछ special ये बता सकते हैं? I love Gujarati food. I love Gujarati dal, thepla, dhokla, everything. And if not Gujarati food, I love Mexican if we speak of international. And I love Rajma Chawal, but I love Gujarati. I'm a Panju married to a Sindhi, but I kept a Gujarati cook. No connection. I just love Guju. Okay, vegetarian, non-vegetarian? Vegetarian. Okay. Favorite social media platform? Instagram. Just addicted now. I don't think we have a choice. Okay. Saturday night, gossip with friends या family movie time? What if the option is neither of the two? Girls night out? Girls night out with mad Bollywood music, with dancing on the tables, mad dance, मतलब पागलों वाला dance. That is Saturday night. No, that was the best answer. Option C was better than the other two. Because ना मैं गॉसिप करती हूँ तो फैमिली टाइम तो वैसे भी हो जाता है। सैटरडे नाइट मींस हमने हफ्ते भर गधे की तरह काम किया है और उस काम की थकान को अपने आप से पूरा रिलीज करने के लिए मैं सिर्फ डांस के बारे में सोच सकती हूँ। वैसे शो होस्ट वाले लोग ना ज्यादातर गॉसिप करते हैं, मतलब ये थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टिंग हो गया है। ऑन स्क्रीन गॉसिप करने के पैसे लेते हैं, फ्री में नहीं करते। अच्छा, अरे वन वर्ड वन लाइन था भाई, वापस आओ। इसके पहले के पूजा एक किताब लिखते हैं, which I'm known for, by the way. Okay. What is the one thing that you're most afraid of? Unpeaceful situations. Okay. Yeah. Best gift ever received? My daughter. मैं बोलने वाला था कि I don't want to hear Abhika anything else. I know that is already the best gift is the fact that I have a little girl like this thing, because it was my dream and it happened. So yeah. अरे भाई, let me rephrase the question. What is the best gift that you ever received on a Valentine's Day from your husband? कुछ तो I don't receive Valentine's gifts from my husband, from anybody for that matter. Your mom has a saree brand. I mean, come on. Never. No gifts. If any gifts, it's just food. That's it. Very big foodie. So yeah, no gifts. Specifically Gujarati food or what?
No, when I go out, I'm happy to like try a lot of different cuisines. But dil se wo pata nahi kya hai for stuff for theplas. I don't know what it is. Definitely not on a Valentine's Day. If I tell my husband, can you get me theplas on this Valentine's Day? He'll be like, who have I married? So no, before you're imagining me with my husband with this candlelight dinner and one dal dhokli in the middle, no. Not happening. Not happening. So final question for today. Favorite holiday destination? Favorite holiday destination? Budapest. I've actually been to Budapest on a work trip, which I extended to 2 days of holidaying alone. And I still have this major thing that I want to go there with my husband, with my daughter, with my family. I think again Australia and Budapest, these two. So yeah, I would definitely want to do a lot more time, like a lot more holiday time in these two. So this is the end of the one word, one line. उसमें बहुत सारी लाइनें हो गई, बहुत सारे वर्ड हो गए. Technically ऐसा होता नहीं है. But हाँ, go on. नहीं, I have to tell myself only one word, yeah. वो ऐसे ठीक है. It was really really fun. ये वाला one word one line अच्छा था. So I'm going to ask you another one or two more questions before we wrap this up. You are also a member of CINTA. What is how's the experience? I mean, there are very senior people who are members. Abhay Bhargav ji we interviewed, and a lot of people who are member of CINTAs. And CINTA actually in the lockdown did a lot of stuff for the industry and those workers and people who are working. How is your experience of CINTA, and what are the good activities now to revive the industry again and to help those out that are happening? जो सवाल ये 2 पेजेस का होता है, उसका जवाब एक शब्द में कैसे दिया जाता है? Thank you. Oh God, thank you. फिर मैं फ्री हूँ, ओके, फिर then it's okay. I'm wondering इसका जवाब मैं एक शब्द में कैसे दूँगी? So as you know कि हाँ काफी सालों से मैं CINTA के साथ thankfully member, they've allowed me to be a member, which I'm very grateful to them for. And मम्मा काफी एक्टिव है CINTA में, तो you know, more than anything, of course there are bodies of work wherever आप जहाँ भी कुछ भी करेंगे, will be a part of a certain body. But यहाँ पे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक सेंस ऑफ फीलिंग ऑफ यू नो अपना होम है, ये अपनी बिरादरी है, अपने लोग हैं, अपने एक वो जो बहुत ही जुड़ी हुई फीलिंग. There's so many people in CINTA on the forefront that have been working with moms since मैं literally शॉर्ट के बीच में जब मम्मा की गोद में बैठी होती थी तो वो भी सब हैं, और मैं उनको तब से मेरे को लगता है कि यहाँ सब मेरे परिवार का एक हिस्सा है. तो अनफॉर्चुनेटली मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ CINTA की एक्टिविटीज को, बट एक इतना अच्छा लगता है to just know that a body that is doing such wonderful work, as you mentioned, that even the tough times, holding all the actors together. हमें तो पता ही है कि हर इंडस्ट्री कितनी हिट हुई है, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी. इवन टुडे जो लोग जैसे मैं होस्ट करती हूँ लाइव शोज जहाँ 1000-1500 से कम कि यू नो नंबर्स में शोज होते ही नहीं है, वो इंडस्ट्री अभी तक वापस नहीं आई है. हाँ, सीरियल शूट हो रहे हैं, वेब हो रहा है, एंड अ लॉट ऑफ यू नो डबिंग इज हैपनिंग, बट अभी तक अगर हम बोलें कि अब सब ठीक हो गया, अभी तक बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं हुई हैं. There used to be a lot of travel involved in the work that I did, but never mind. Having said that, ups and downs सबने देखे हैं, और खास करके ऐसे समय में तो कि you know the gravity of the situation is a lot. Absolutely. Coming back to what CINTA has done has been amazing, and I feel a huge sense of pride. जैसे मैंने कहा, that I feel very grateful to them that they've allowed me to be a member, and it also gives me this sense of you know this value that we should bring something. Some value to ये वो जो CINTA का एक कार्ड है, वो सिर्फ एक कार्ड नहीं है, वो एक जिम्मेदारी भी है. And I feel like a part of a larger solar system and a part of this one big family. Feels really nice. Thank you so much. आज to you know joining with the fans of this show and your fans. Any message you have for your fans and the young aspirants who are still struggling to make a mark in the industry? Yeah, I think I'll tell the young aspirants the same thing that I always say, that all that glitters isn't gold.
बहुत सारी चीजें हैं जो जब तक आप उनके साथ गुजर नहीं चुके हो, आपको कभी एहसास नहीं होगा कि वो किस हद तक मुश्किल हो सकती है। Not asking for any sympathy, सब अपने पूरे होशो हवास में ही डिसीजन लेते हैं किसी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने के लिए, and when you do it, you have to take it with all that comes your way. But little sensitivity sometimes, even अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पे अगर हमें इतना प्यार मिलता है, कभी कभी कुछ चीजें होती हैं जो समझ नहीं आती हैं, जैसे कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं जो इट्स लाइक आप हमारे गुड मॉर्निंग का रिप्लाई नहीं करते, which is nice, it's love, but आपने उस फ्रेंड के साथ उस शो में काम किया तो उन्हें हमारा ये मैसेज दीजिए दैट हम सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं टू वर्क हार्ड, टू कीप इट ऑल टुगेदर ऑन द होम फ्रंट, ऑन द वर्क फ्रंट, एंड don't push anybody to do anything they don't want to do, because you will never understand till you wear their shoes what their lives are all about. So a little sensitivity, yes, keep the love coming, it's very, very welcome. And a very big message to all our listeners is that you must watch Sujay's show. He's amazing. He puts and Saturday Stardom Live is a beautiful platform. मैं बहुत excited थी जब से मुझे कॉल आया कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आना है एज अ होस्ट। अब मैंने भी बहुत इनफैक्ट एज यू नो कि मैं सासबक और मीडिया कर रही थी, तो लॉकडाउन में जब हमारा शो काफी टाइम एयर पे नहीं गया था तो मैं यही कर रही थी, मैं लोगों के साथ कन्वर्स करके हमारे यूट्यूब चैनल पे जा रहा था, तो ऐसे ही रिमोटली हम लोग बैठ के इंटरव्यू कर रहे थे। तो व्हाट इट टेक्स टू सेट अप अ ब्यूटीफुल सेटअप लाइक दिस, टू एक्चुअली गेट पीपल्स डेट्स, टू मेक देम कंफर्टेबल, टू डू होमवर्क ऑन देम, और ये जो 30 मिनट्स आप देख रहे हैं उसके पीछे इतना कुछ जाता है। आई थिंक दिस प्लेटफॉर्म इज डूइंग इट सो ब्यूटीफुली दैट आप देखते रहिए, प्यार देते रहिए ताकि ये ऐसे ही बढ़ता रहे। Thank you so much, Pooja. Thank you so much. And thank you everyone for whoever is watching. I want to really thank Pooja for saying such nice things about my channel. And I hope you also had a good time here. And also everybody who's watching it, please do follow Pooja. She's there on Instagram. And if you like the show, please do share the link with everyone that you know in your circle. I would like. How sweet. Thank you so much, Pooja, for joining in today. Yes, thank you so much for having me. I hope हमारी मुलाकात हो। आप तो अकेले अकेले दिल्ली की ठंड का मजा ले रहे हैं, मुंबई में सेकंड समर फुल स्विंग में है इस वक्त, लेकिन आई होप किसी दिन ये दुनिया पहले की तरह एक बार फिर से खुल जाए और फिर से छोटी सी हो जाए और हम कुछ रियल लाइफ में भी एंटरटेनमेंट साथ में सोच सकें, और जैसा हमारा एक ही मकसद है अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना, तो होपफुली वी कैन कोलैबोरेट इन मेनी वेज। और yes, please, Sujay, thank you for reminding us. Please do follow me on my Instagram page, because if you like the crazy me that I am, I think I keep a lot of madness over there on my Insta page, Pooja Kamal M. So yes, and thank you for connecting with us. और अगर आपने end तक ये इंटरव्यू देखी है तो thank you. All right, thank you so much, Pooja. Have a great day. You too. Okay, bye-bye. Bye. Good night, guys. So this was Pooja Kamal, जिनके साथ हमने इतनी हिलेरियस बातें की। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीक एक और सेलिब्रिटी को लेके आऊंगा जिनकी लाइफ के बारे में हम बहुत कुछ जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें इस वीडियो का लिंक, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल नेक्स्ट सैटरडे, आई होप एंड आई प्रे दैट यू स्टे सेफ एंड प्रोटेक्टेड। टिल देन, नमस्कार।